Good evening, sir. Am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. Audible, sir. Good evening, sir. Okay. Yes, sir. So, before starting today topic, some people has asked, sir, what you provide in early morning Telegram or premium community, how to use all these things. Means actually we don't know, but user provides superb label and all these things, but you have not. So give me 15 minutes before starting all these things. I will say जब तक वो क्लास वगैरह नहीं होती है ना हाउ टू यूज सपोज इन अर्ली मॉर्निंग एक सेकंड तो सपोज इन अर्ली मॉर्निंग आई every day post something that is very important. Now, this one is GAN combo points where it is mentioned one GCP number. It is mentioned. Now, highly bullish is that level, highly bearish is that level for the Nifty. So, how to use? So one GCP number, okay, and highly bearish. So 23131 means Nifty will be highly bearish below the level 23131. 23131. Now, if avoid first early morning volatility, try to change this to 5 minutes. Okay. Now, if the try to avoid first minutes and then if any candle closes below this, okay, ये इंडेक्स है तो हम लोग 3 मिनट पे ले लें तो अवॉइड अर्ली मॉर्निंग ट्रेड around 9:30. Okay, now if any candle and then I have also mentioned here 23321 23321. Now there. Yeah, early morning avoid at least 9:30. Then try to take that trade. After 9:30, if any side price breaks the candle upside or downside. Now everyone knows I have already shared and already taught some breakout rules. Open equals to low, high, all these things. Everyone knows. Yes, sir. Hello. हाँ, Yes, sir. sir. Anything? Yes, sir. So if price breaks that level and you can also use 5 to 10 points buffer. Bank Nifty में 10 point buffer. You can go for the short trade here. You can buy put or you can buy also. You can buy Sir, put. You can say Hmm. Yes, sir. No, you can buy also put, you can sell call or you can sell also future there. Now, target is mentioned and target is little bit bigger. 23011 is the target. 2301. This is your target. 23011. Now, what should be the stop loss and what should be? Again, entire day, avoid this time. I have told after 10:30, there is a situation when market has no direction. Again, after 12:40 to 1 p.m., our market takes another side direction.
So when also price has broken this level, again apply open equals to low, all these things. And if price do retest there, then take the trade. And upside target highly bullish 23391. 23391. सर इसमें है 391. ना, सर इसमें 1 बजे के आसपास भी सर हमें नीचे का ट्रेड मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, इसको एक ट्रेड मिल गई ना, आपको पैसे बन गई। इसमें देखें, इसमें आप मतलब सारा दिन अगर प्लान करेंगे तो सारा दिन आपको ट्रेड मिलेगा। तो सारा दिन तो आपको करना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड आपको फाइंड आउट करना है कि बुलिश अबोव बियरिश बिलो के नीचे मिली, एक ट्रेड मिली, ओके नो प्रॉब्लम, आपकी ट्रेड में पैसे बने। तो बाकी सारा ट्रेड अवॉइड करते 1 बजे के बाद। आफ्टर दैट अगेन इफ fresh trade comes, then you can also take, otherwise avoid। तो अभी जैसे क्या है कि डाउन साइड का ट्रेड मिल, अभी जैसे प्राइस की लेवल है तो सारा दिन तो मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती रहेगी, तो अप डाउन हम लोग ट्रेड तो करेंगे नहीं। नंबर वन, हमें एक सेल साइड की मोमेंटम या बाई साइड की मोमेंटम वाली ट्रेड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी क्या है कि एक ट्रेड में पैसे बने, देन सर क्लोज योर सिस्टम, ओके नो प्रॉब्लम। Again, if you are still getting any price breakdown after one, you can take the trade. Okay. Here it has given you first target, second target, whatever. Where to put, it has trigger your stop loss here. Okay. Now, avoid. Again, when price has given this breakout, again on the retest, take the trade there. And 2, 3, 391, 23511 is your टारगेट, सो बुक अकॉर्डिंगली। स्टॉप लॉस की बात अब हम लोग करते हैं। अच्छा, हियर ऑन दैट डे 13 तारीख को मैंने वो दिया था, मैं एक सेकंड पेन कर लेता हूँ मास्क। एंड इसके साथ यू कैन अप्लाई एनी इंडिकेटर ऑल्सो कि कहाँ से प्राइस लेवल में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाईली बियरिश नंबर इज 23597, तो ये तो इसके नीचे ही है, तो अभी इसने तो ऑलरेडी सर गैप अप हो गया, तो उस दिन आपको ट्रेड करना नहीं है, छोड़ दे ना। हियर इस दिन 12 तारीख को, 11 तारीख, 12 को शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। 11 तारीख 24214 ना। हियर जिस दिन मार्केट में सर बड़ी गैप्स होती है, ट्राई टू अवॉइड द ट्रेड बिकॉज बिग गैप्स विल नॉट गिव एनी प्रॉपर डायरेक्शनल मूवमेंट एंड इट विल ट्रिगर योर स्टॉप लॉस बोथ साइड, जैसे इस दिन हुआ है। तो इस दिन तो क्या है कि पैनिक एक मतलब सेलिंग्स थी, अदरवाइज बिग गैप्स अगेन इफ यू विल प्लान दैट इट विल गो डाउन साइड, इट विल रिकवर। सो अवॉइड दिस, जब वो निफ्टी में 200 250 पॉइंट का गैप हो। नाउ हियर on 11th, highly bullish number 24282, 24282, yes, 24282, okay, this is the number, okay. And then you have marked 24170 downside momentum. Bearish momentum will be started below this upward. So first of all, I have told ki avoid any kind of panic entry early in the morning. Avoid first 15 minutes market volatility. First 5 minutes, what happens previous day trade close. And then after 9:20, again, what happens? Today also fresh entry. So avoid 9:30. After that, any side price breaks, apply your breakout rule, open equals to low, volume, any FBG gap created, you can apply there. Now, then when the price has given breakout, it has taken here, it is, you can take that trade. This is your first target 24125. You have achieved something there, book
one lot, all these things. Similarly, coming on last 10th. ये किस दिन का डेटा है? 10th का है। हाईली बुलिश 24053, 24053। यस। एंड हाईली बियरिश नंबर इज 23862, ये कहीं पर मतलब नीचे है। तो मार्केट हैज गिवन गैप अप अगेन। इफ दिस सिचुएशंस हैपेंस कि आपका बाइंग इसके ऊपर में है, तो वेट फॉर द प्राइस टू क्रॉस हियर एंड देन, क्योंकि ये अप साइड की ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पर बुलिश। वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक अबव फ्रॉम द डाउन एंड देन वेट फॉर द प्राइस टू रिटेस्ट एंड देन टेक द ट्रेड। नाउ लिटिल बिट क्लियर what is sir. your stop loss? Okay, now you can Yes. apply this one। मैं और एक दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो अभी क्या है कि बड़ी बड़ी मतलब कि मैंने बताया गैप्स हैं, वो थोड़ी वो सिचुएशन, जैसे सपोज इस दिन का मैं सपोज 6th मार्च, कमिंग टू द 6th मार्च, इसके साथ आप कोई इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, इसके साथ आप अपनी टाइमिंग कैंडल को भी लगा सकते हैं। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको मना नहीं करूंगा, जितनी कॉन्फर्मेशन ले सकते आप उसमें ले सकते, कोई इशू नहीं। March 6, now here it is given buy above bullish above 24772 on 6th, 24772, ठीक है, प्राइस नहीं आया है। अगेन हाईली बियरिश 24610, यहाँ पर चलिए मैंने इसको लगा दिया ना। फर्स्ट, when any candle closes below, this candle has closes below, okay, nice। Now wait for the price to retest there, here price has done perfect retest। अच्छा, और एक मैं बात बोलूं, if the price breaks after 11 or after 10:30 or 10:40, there is a maximum chance that you will not get so many movements and maximum chance it will create you a panic situations। ये अपनी मार्केट की एक क्या है कि फॉल्ट है वो, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बट स्टिल यू हैव गॉट दिस वन। ओके, व्हाट शुड बी योर स्टॉप लॉस, उस पर मैं अभी आता हूँ। नाउ इट हैज गिवन एंटायर एंड आफ्टर दैट इट हैज गिवन यू सम प्रॉफिट देयर। नाउ so you can apply another superb things what I actually post. When I post, it is the actually I will not appreciate myself, it is my theory। प्राइस टाइम सिंक्रोनाइजेशन मैं इसको एवरीडे पोस्ट नहीं करता हूँ। प्राइस टाइम सिंक्रोनाइजेशन व्हेन इट हैपेंस, जब भी ओह, price time synchronization when it happens, market will be volatile at and it indicates a trendy market, trendy market। Now market trend normally the trend will be decided by this timing candle or market this क्या बोले उसको, मतलब 920 से 940 के बाद एक मार्केट की डायरेक्शन जो मतलब डिसाइड होती है, और वो ट्रेंड काफी देर तक चलती है वो, मतलब मार्केट में मे बी सारा दिन चलेगी या मे बी 1240 से एक फिर मतलब मार्केट में वहां से रिवर्सल आने। तो व्हेन दिस थिंग्स हैपेंस, इट विल हैपन ओनली 5 to 6 times इन अ मंथ आज थी। तो when these things happens there, so what you have to do, you have to mark the 920 वाली कैंडल को अवॉइड कर दे, 925 से ले, ठीक है। 920 इज द अर्ली मॉर्निंग वोलेटिलिटी कैंडल, अवॉइड फ्रॉम 925 टू 940, टेक दिस कैंडल।
Now mark this candle 924 925 to 940 high and low, and whichever side this candle breaks and a small retest, you can take the trade. Now you can apply any indicator. Suppose you have applied EMA 21 for the intraday, EMA 21, 36, it is the intraday levels. And until and unless, क्योंकि 36 में भी थोड़ा सा वो, I normally use such Bollinger Band for this. How I use, I will say. My method I am saying. Now, here it is the middle band, here it has given closing, and here it has done, or here it has done perfect retest. तो पहले ये क्या है कि मिडिल बैंड के नीचे है, और ये क्लोज जब दिया है, इट हैज टच्ड लोअर बैंड. ओके, यस और नो? हेलो, एनीवन? Yes, sir. तो when it has closed lower band, it indicates that कि डाउन साइड का मोमेंटम. जब ये लोअर बैंड को टच करते हुए चलता है तो ये डाउन साइड का मोमेंटम. तो फर्स्ट below middle band market is weak, above middle band it is straight, and when it will touch here, it has touched, it is still same. You have got the retest entry there. Okay, अब जब तक ये अपर बैंड को क्रॉस नहीं कर देता है, मतलब क्रॉस मतलब ऐसा जैसे इसने इसको क्रॉस किया है, इट इज कॉल्ड क्रॉस. कैन यू एनालाइज? इट हैज कॉल्ड क्रॉस. तो जब तक ये अपर बैंड को क्रॉस नहीं करे, दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू. और ये तो सारा दिन ही कंटिन्यू है. आज का जैसे मैं तो सपोज मैं एक काम कर, तो यू कैन टेक वन लॉट पुट, यू कैन होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंटायर डे भी कॉल या पुट लेकर के एक आउट द मनी भी लेकर के रख सकते हैं आप. उस दिन पूरा दिन मार्केट एक ट्रेंडी फेज में होता है. And sir, how does it differ from magical time? Just about this synchronization No, is saying. no. This theory is completely different, sir. Synchronization theory is completely different. It is So not based on. synchronization there we No. have to follow synchronization only. Yes. Synchronization is my unique method to find कि अगला दिन मार्केट डायरेक्शनल में आएगा कि नहीं आएगा. अभी जैसे सपोज 13th March I have given price time. Oh, I have given price time synchronization. So on 13th साउंड आ रही है सर, प्लीज थोड़ी सी म्यूट कर लीजिए. म्यूट कर लीजिए साउंड. मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये जब मैं देता हूं तो पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि यू विल नॉट बिलीव. मतलब महीने में अगर मैंने 8 बार दिया तो आप समझिए कि अगर आप पैनिक नहीं है, बार बार पीएनएल नहीं, सिस्टम फॉलो करेंगे तो बड़ी बड़ी पैसे. नाउ हियर व्हाट, फर्स्ट अवॉइड 9:15 टू 9:15 से लेकर के 9:25, पहला आपको सब 10 मिनट कैंडल मतलब निकाल देना है. मतलब एक 5 मिनट का कैंडल मतलब 9:15 से 9:20, एंड देन नेक्स्ट 5 मिनट्स मतलब 9:20 से 9:25 का, एंड देन फ्रॉम 9:25 टू 9:40 15 मिनट्स कैंडल. ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको बता. हियर इट हैज गिवन, ये मैं मान लेता हूं कि इसका हाई है, और ये 9:40 बजे 5 मिनट ही रखे तो वो तो मतलब कितना है. आपने 3 मिनट सिलेक्ट किया है सर. ओके, थैंक यू. ठीक है. नाउ हियर it is my unique and special method. Anyone want to learn? Pay me गुरु दक्षिणा. इसकी कोई प्राइस नहीं है, ये सब प्राइसलेस थ्योरी है, इसकी प्राइस नहीं. Now here when the price will give sir breakdown here 9:25 to 9:40, it is your candle. Clear? Means ये वाले कैंडल का हाई लो 9:25, 30, 35 एंड देन 9:40. ये मैंने कैंडल, मतलब मार्केट एक 9:40 के बाद में जो
डायरेक्शन को फाइंड आउट करती है। हियर इट हैज गिवन ब्रेक डाउन, यू हैव टू वेट फॉर द रिटेस्ट, या जाकर के आप एक छोटी क्वांटिटी आप कॉल पुट अपसाइड ब्रेक करें, आप जाकर के बाई करें। और नाउ सर सॉरी टू इंटरप्ट। अरे यस, नाउ से साउंड आ रही थी, नाउ से। हेलो। हाँ अमर सर, मैं हाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, जो बात नहीं कर रहा है ना, उनको म्यूट में जाने में क्या प्रॉब्लम है? कितना बैकग्राउंड नॉइज आता है? नहीं नहीं, काफी ज्यादा, मतलब अपने आप को जो बोलना है बोल ले, यस नो, और फिर आगे जाकर के अपने को म्यूट कर ले ना, क्लियरली म्यूट जस्ट कर वन ले क्लिक ना, एक क्लिक करना है म्यूट अनम्यूट पे, जब बात करनी है तब म्यूट अनम्यूट करो। बस। नाउ हियर इट हैज गिवन परफेक्ट ब्रेक डाउन, हियर इट हैज, तो ऑन योर ब्रेक डाउन आई विल नॉट से यू कैन अप्लाई माई सर ब्रेकआउट थ्योरी कि पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी। नाउ व्हेन इट हैज गिवन ब्रेक डाउन, इट इज बिलो द मिडिल बैंड, अगेन इट इज इंडिकेटिंग नाउ आई एम वीक हियर। ओके, तो इससे भी एक मेरी वीकनेस का पता, इट हैज नॉट टच्ड, ओके नो प्रॉब्लम, वेट फॉर द प्राइस टू रिटेस्ट, या यहाँ पर आप जाकर के एक लॉट, दो लॉट, पांच लॉट आप अपने लिए मतलब खरीद सकते हैं। एंड यू विल हैव टू पुट द ट्रेड, मतलब मैक्सिमम टाइम व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज कि 12:45 तक ये ट्रेड में जो एक मार्केट में ट्रेंड से डिसाइड होता है वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू द ट्रेड अनटिल एंड अनलेस इफ इट नॉट क्रॉस अपर बैंड, मतलब इसके ऊपर में भी क्लोज हो और अपर बैंड को भी आपने यहाँ पर मतलब कि ना सेल किया है, तो स्टॉप लॉस ऊपर में होगा, कहाँ पर होगा इसका, 0.618 लेवल इज द बेस, वो मैं आता हूँ, ठीक है ना। वेन योर स्टॉप लॉस नॉट ट्रिगर, या अगर इसको ऊपर में है बोलिंगर बैंड, और मतलब जब तक क्रॉस नहीं कर दे, यू कैन कीप कंटिन्यू द ट्रेड, or book some quantity also here. When you have got 100 point there very fast, suppose you can book some quantity there and then trail 1 to 2 lot further. बहुत लोग इस पर सर ट्रेड करते हैं जब मैं देता हूं, और वो पैसे भी बनाते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा, बेस्ड ऑन प्राइस टाइम सिंक्रोनाइजेशन आई हैव गिवन ऑन March 6, तो March 6 का मैंने अभी दिखा दिया वो। नाउ Feb 27, March 4, Feb 27, उतना वो मतलब कि ना बैक में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो Feb 27 में एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। कौन सा डेट है, इट इज March 4, ये वाली पूरी मैं मंथ में मैंने वो जब जब दिया है वो March 4 आई हैव गिवन। नाउ हियर ऑल्सो देयर इज अ सिचुएशंस देयर कि बी कॉशियस व्हेन market creates any kind of gap up or gap down, so you will get the slow movement, but what you have to do आफ्टर 9, दो हम लोग कैंडल अवॉइड कर देंगे, 9:25, 9:30, 9:40 एंड देन ये चार कैंडल 25, 35, सॉरी 30, 35 एंड सर 40, आई विल मार्क द हाई एंड। ओके, whichever side, and then apply your Bollinger Band. If it has given upside breakout, here it has done perfect retest, you take entry here. And what the market trend, it will decide this synchronization. This trend will continue at least till sir 12:40, at least till मतलब 12:40। अभी क्या है कि बड़ा सा है तो मूवमेंट नहीं है, वो फिर अलग बात हो जाती है, बट when these things happens you can capture the big। आज भी था, मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही वो मैंने मतलब कहा था कि वो मैंने, अरे आज का नहीं, भैया 9:20 to 9:40 प्राइस टाइम सिंक्रोनाइजेशन हैपन, तो जब ये स्क्रीनशॉट आए तो आप सोचे, और मैंने आज वो मतलब लिखा भी था कि दिस थिंग्स हैपेंस, तो नाउ इट इज द मनी प्रिंटिंग हैपेंस, फोकस ऑन दैट नाउ टुडे। Again, you have to mark 9, 20, 20, 30, 40 and ये 35, 40।
all this high end. And after this breaking, what the trends are decided? This trend will continue. अभी स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है तो स्टॉप लॉस को छोटा करना पड़ेगा. तो you can make the money using also this method, and you can also take confirmation from the price there. Another things which I normally post there, ये तो बैंक निफ्टी रहा होगा, इसको छोड़. Now, max pain price level. Max pain price level is the level where sellers, it is very a small target you will get, but you will easily achieve it. It can be achieved. Max pain level is the level जहां पर sellers will feel कि नाउ आई हैव टू क्लोज माई, मतलब ये ऑप्शन बेस्ड नहीं है कि ऑप्शन का बेस्ड है वो मैक्सिमम पेन, मतलब प्राइस जिसके नीचे, जहां पर कल की, मतलब ठीक है, पुट राइटर्स या मतलब सेलर्स जहां पर सेल किए हैं, इसके नीचे दे विल फील फियरनेस. इट इज दैट लेवल. तो इफ यू विल एनालाइज, जैसे 23103, छोटी छोटी अच्छी प्रॉफिट बनती है फटाक से, जहां पर वो अपनी ऑर्डर्स को क्लोज करते हैं, वहां पर आप अगर एंट्री बनाएंगे तो पैसे इजिली बनते हैं. इसको थोड़ी सी लोअर टाइम फ्रेम, इसके नीचे पैसे अच्छे बनते हैं, और 2 3 फटाक से बनते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, now here suppose that market will be panic below 23547. इट इज, छोटे पैसे बनते हैं 40 से 50 पॉइंट, लेकिन जब वो अपनी ऑर्डर्स को जब वो स्क्वायर अप करते हैं तो आपको उसमें क्या है कि मतलब कि ना पैसे तेज से वो मतलब कि ना आराम से बनते हैं. जैसे 23547 के नीचे when the price will come 23547, ये तो खैर वो गैप अप है, इसमें नहीं. आप मतलब एनालाइज करेंगे तो यू विल फील कि ये जो पैसे 40 50 पॉइंट है, या जो बैंक निफ्टी में नॉर्मली 70 to 80 पॉइंट्स आर देयर, यू कैन मेक मनी वेरी इजिली देयर बिलो दिस लेवल. मैं एक सेकंड में एक दो आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएंगे. मैक्स पेन लेवल, गैप्स में अभी क्या है कि वॉर टाइप की न्यूज बेस्ड सिचुएशन है, तो इस टाइप में अगर निकल जाए तो आप उसको ट्राई नहीं करें, छोड़ दे. इट इज विच डेट है? मार्च 6. मार्च 6 24519. मार्च 6 2451. इस दिन भी तो गैप आता है. मार्च 4 24593. 93 से लेकर के 40 पॉइंट्स इजिली अचीव होती है. 24593, मतलब सेलर्स विल बी 24593. इसके नीचे मतलब अगर हो तो प्राइस में इजीली, मतलब टारगेट किया 24551, खैर यहाँ पर मिला है टारगेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. और स्टॉप लॉस में आप लोगों को अभी मैं थोड़ी आप लोगों को क्लास शुरू करूंगा तो बताऊंगा. नाउ हियर 25131 and it is 2nd March. No, it has not come here. 25131, it has not come. No, वो तो गैप्स में निकल गया, मैं क्या दिखाऊंगा. अमर सर, यस. इंडिकेटर
तो आपने दे दिए एक्सेस, लेकिन वो यूज कैसे करना है? तो मैं मैंने आप बताया था ना कल, वो मैंने तो वो मतलब प्रीवियस सेशन मतलब सैटरडे को लिया था, उसमें मैंने स्क्रीनर भी बताया और साथ में मतलब इंडिकेटर भी बताया वो बाई ऑफ सेल। पंचांग पंचांग सप्ताह आपने बताया, उसमें है क्या? इंट्राडे बीटीएसटी मॉड्यूल 3 में है, आप उसको देखें। स्टॉक सिलेक्शन मैंने बताया, इट इज इंपॉर्टेंट, एंड देन अप्लाई पीओबी इंडिकेटर। तो ये वेब 26 के बैच में है या इंट्राडे के बैच में है? इसमें मैंने बताया है, वो मैंने मतलब इस बैच में बताया है, इंट्राडे बीटीएसटी 4 में मैंने बताया है। ये तो प्लैनेट्स की रेमेडी है। पीओबी प्लस ट्रेड प्लस स्टॉक सिलेक्शन क्लास डेटेड 14/3। ओके, वंडरफुल, मैं देख लूंगा, थैंक यू। हाउ टू। आप एक बार देखें, फिर प्रॉब्लम होगी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मैं मतलब बताऊंगा। श्योर श्योर, थैंक यू। वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को फिर हम लोग। तो नाउ यू कैन यूज ऑल दीज थिंग्स, बट अगेन आई एम सेइंग दैट apart from what I post, don't need to follow all these things. But when I post price time synchronization happens either in gold or in Nifty, focus on that topic also. अब इसमें कॉन्फर्मेशन लेने के लिए आप किसी से ले, बट इट नॉर्मली डिसाइड्स कि नेक्स्ट डे मार्केट विल बी सिंगल डायरेक्शन ट्रेंडी और नॉट। इज दिस इंफॉर्मेशन नॉट एनफ टू मेक मनी? यस और नो? हेलो। Yes, sir. अगर आपको आज पता चल जाए कि कल मार्केट में सिंगल हो, मतलब ये 925 के बाद में जो भी मतलब डायरेक्शन होगा वो कंटिन्यू रहेगा, वो मतलब 1.5-2 घंटे या एटलीस्ट 12:40 तक तो रहेगा, 12:30 आराम से अपने लोग पुट कॉल लेकर के बैठेंगे ना, क्या दिक्कत है, बैठेंगे आराम से। फोकस ऑन दैट। मनी, जो हमारी पैसे बनते हैं वो नॉर्मली मार्केट में डायरेक्शनल मार्केट में ही बनते हैं। साइडवेज मार्केट में नो वन कैन मेक मनी, क्योंकि वेदर मार्केट विल नॉट मूव, व्हाट एनीवन विल डू, ऑल स्ट्रेटेजी, ऑल एवरीथिंग विल बी फेल्ड हियर ना। इफ एनीवन हैव डाउट he can ask, otherwise I will start the session. सर टाइमिंग कैंडल रिलेटेड एक क्वेरी है मुझे। नहीं, वो आप एंड में पूछ ले, अभी जो मैंने बताया उस चीज से रिलेटेड पूछे सर, अभी जो मैंने This is clear, sir. ना। यस, ओके। ट्राई टू टेक ट्रेड इन इंडियन मार्केट फ्रॉम 9:25:30 to 10:40. After that our market has maximum time, no direction, zigzag market. Try, you will lose money. And again, market trend will be decided after 12:40 to 1. इसके बाद मार्केट में फिर एक डायरेक्शन आता है, तो ट्राई टू प्लान एनी ट्रेड आफ्टर 1 PM, नॉट बिफोर 1:30, इसके बाद में। अगर बीच में एंट्री बनाई तो चांसेस ऑफ लूजिंग की, अर्ली मॉर्निंग की प्रॉफिट लूज करने के चांस बहुत ज्यादा होती है ना। सर एक क्वेश्चन था अभी, हाँ, आपने बताया ना कि 1 डे बिफोर हमें ट्रेंड पता चल जाएगा, तो वो सॉरी मुझे वो ध्यान में नहीं आया, यानी कैसे 1 डे बिफोर हो? ये तो मैंने पूरी बताया ना कि नाइन नहीं नहीं, ट्वेंटी पूरा नहीं नहीं, सर। हाँ मैंने वो क्लास नहीं पढ़ाया, मैंने बताया मैं जब देता हूं तो आप उसको इस तरह हाँ से हाँ। ट्रेड करें, ओके ओके, मैंने फाइन ये सर, बताया। फाइन सर। ओके मैंने ओके, क्लास नहीं दी बेसिकली इसकी। मॉर्निंग में पता लग जाता है। फाइन नहीं, सर, एक फाइन। दिन पहले ही पता लग जाता है, मतलब मैं तो अर्ली मॉर्निंग में मैं इसको मॉर्निंग में पोस्ट कर देता हूँ। अब आप किसी हाँ, ट्रेंड से, किसी इंडिकेटर से कॉन्फर्मेशन ले ले, हाई लो मार्क करके, वो अपने अकॉर्डिंगली, बट आज मार्केट एक डायरेक्शन होगा, एंड दैट डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड कि जो हमारी 9:25 से 9:40 की कैंडल है, उसके बाद एक मार्केट में नया डायरेक्शन शुरू होगा और वो कंटिन्यू रहता है। और ये टोटल मंथ में 6 से 7 बार, 8 बार ही होता है, इससे ज्यादा नहीं। 8 बार तो राइट, बहुत है सर। राइट सर, थैंक यू। सर वो 4 बार सर अच्छी एक ट्रेड बन जाए टीसीबी ना। कम्बो स्टॉक भी देते हैं, वो कैसे होता है?
वो आपकी सेशन में मैं निकालना सिखाऊंगा, वो तो है आपकी सेशन में मैं सिखाऊंगा। आज की टॉपिक थोड़ी पढ़ लेते हैं, ठीक है सर? अभी हाँ? जब आपकी सर इंट्राडे के बाद में मैं आप लोगों को बीटीएसटी के सेशन लूंगा, बाई टुडे सेल टुमारो, और सर सेल टुडे बाई टुमारो। आफ्टर दैट आई विल टेक सर टीसीडी कॉम्बो, तो जो आप निकालेंगे उसको इंट्राडे और स्विंग कैसे ना। अगेन मैक्सिमम पीपल आर asking, again I am saying कि sir I am sir getting the time from sir Gangula and Excel, it is sir getting different. So हाउ मेनी मेथड्स यू विल अप्लाई, मतलब इफ अगर आप 20-25 मेथड अप्लाई करेंगे, अगर कोई यहाँ से सपोज उसने साइकिल को मार्क करके काउंट करके किया, या किसी ने 144 मार्क किया, तो ही विल गेट अनदर, मतलब इन अ डिफरेंट टाइम। बट अगेन आई एम क्लियरिंग यू कि आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, क्या कोई बता सकता है कि कौन सी बेस्ट है अभी तक, जिन्होंने फ्रंट टेस्ट या कुछ ट्रेड भी किए हो? सर एनी एक्चुअली है? मेरा यही क्वेरी था सर, कि मैंने दोनों ट्राई किया था, गैंजिला का भी ट्राई किया और एक्सेल शीट से जो टाइम आ रही थी ओपनिंग प्राइस से, दोनों से किया सर। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मतलब किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे, ये दिक्कत हो रहा है सर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ किसी ने अप्लाई किया तो किसका, मतलब कि ठीक एक्यूरेसी वगैरह किसी ने देखा? आज जैसे किसी ने 940 निकाला गैंजिला से, तो अच्छी मूवमेंट आई, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी ने देखा होगा, तो क्या वो मतलब थोड़ी सी हाँ बता सर, सकते हैं कि? एक्सेल सर का मिक्स एक्सेल है, से ज्यादा है। समटाइम Gangula is better, sometime Excel sheet is better. हाँ। सर एक्सेल से ज्यादा बेटर है, एक्सेल से ज्यादातर टाइम में ट्रेड मूव देता है एक्सेल से गैंजिला से। गैंजिला इज बेस्ट also, but if you will apply any कॉम्बो विथ एक्सेल, मैं बोल रहा हूँ कि यूनिक कोई भी चीजें काम नहीं करती है इफ यू विल अप्लाई दैट टाइप विथ एक्सेल। एक्सेल के साथ अगर आप उसकी कॉम्बिनेशन बनाए तो ज्यादा अच्छी होती है। अभी आप बोलेंगे सर कि वो कॉम्बिनेशन कैसे होती है, तो मैं, मेरी एक वो एक्सेल है जो मुझे मिल नहीं रही, एक सेकंड मेरे को थोड़ी सी समय दे। कि हाउ टू मेक द, कि कौन सा टाइम मेरे लिए काम करेगा। सपोज आपने एक समय निकाला गैंजिला से, एक समय एक्सेल से, तो कौन सी समय मेरे लिए ज्यादा वर्क करेगा, तो ये जो एक कॉमन होगा कौन। दोनों में से, दोनों में हाँ कॉमन वो होगा। तो, वो तो कॉमन वाला तो बेस्ट काम करेगा, वो तो एस्ट्रो के रेसी, उसको आप अगर जाकर के राहु काल से ऐड करके देखेंगे तो और भी बेहतर वर्क करेगा। जैसे आज का समय निकला था गैंजिला से, किसी ने पोस्ट किया था 940, एज आई रिमेम्बर, प्रीवियस डे का मतलब लो से, और आज का राहु काल शेष भी हो रहा था 948 में। तो ये फिर मतलब कॉम्बो में तो मतलब अच्छा है, लेकिन वो इट विल सर आज का क्रिएट अ कंफ्यूज। 940 नहीं था, गैंजिला में नहीं अलग टाइम दिखा रहा नहीं है। नहीं, किसी ने मुझको पोस्ट किया था, मैंने फाइंड आउट नहीं किया था, मतलब मैंने, तो सर किसी ने आज आपने मुझको, कौन से हिसाब से टाइम निकाला, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा था। मैंने भी गैंजिला यूज कर रहा हूँ पर वो अपना मैच नहीं हो रहा है। नहीं मेरा टाइम से तो मैच मतलब आपको नहीं होगा, क्योंकि मैं काफी चीजों से कॉन्फर्मेशन, मैंने जैसे 145 दिया था, तो मतलब जब और भी सेशन आगे जाएगी तब वो मैच करेगी, वो उतना समय नहीं है कि वो मैं प्रीवियस डे का लो डाल करके वो मैं समय। मैं अभी एक टॉपिक पर आता हूँ तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। वो एक फाइल कहाँ है यार, ये एक सेकंड से इसमें 5 मिनट समय दे सकते मेरे को, इसमें है कि डेस्कटॉप में ना। व्हाट टू यूज, व्हाट नॉट टू यूज, फर्स्ट
मैं वो टॉपिक को सबसे पहले ले लेता हूँ। टुडे, नहीं मैंने सर गैंजिला नहीं देखा है, बट समवन हैज पोस्टेड कि आज 9:40 का समय निकला है, और मुझको पता था कि रिएक्ट करेगा क्योंकि वो राहु काल था। मैं तो नॉर्मली नहीं देता हूँ राहु काल, एवरी डे इज योर राहु काल, बट व्हेन आई हैव गिवन मार्केट विल्स रिएक्ट, क्योंकि मैंने कुछ सोच करके दिया। तो सपोज प्रीवियस डे लो it has made the low here, and it has made around 5 minutes time frame. It has made, sorry, here it has formed the low 13.55, 13.55. No. So next day, uh, 15:30, change this one. No. 10th March time I have got here 9:20. So I have got the time here 9:20. And next time is 11:20. 11:20. No. So किसी ने मुझको पोस्ट किया कि 9:40, डोंट रिमेम्बर, सब सही है ना? 9:15 डाला था हाँ सर, यही है, मेरा भी यही आ रहा है। नहीं, किसी ने मुझको 9:20। मतलब कि हाँ 9, मतलब पता नहीं, उसने सेशन टाइम से आया तो 9:15 रखा सर होगा, आप आई डोंट नो। 9:15 और 9:25 रख दीजिएगा। 9:20 और 11:20 मेरा भी सेम ही आ रहा है, इसलिए मेरा वो डाउट था कि यार अपना बहुत अलग आ रहा है। नो, 9:20 आने से हम लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं, एंड वी विल टेक 9:35 to 9:40. दिस इज द टाइम, बिकॉज इट इज अर्ली मॉर्निंग। सो इफ एनी टाइम्स कम, अभी मतलब क्या है कि जैसे सपोज आपको यहाँ पर मिला, तो इट इज द टाइम फर्स्ट 5 minutes प्रीवियस ट्रेड क्लोज, नेक्स्ट नेक्स्ट 5 to 10 minutes आज की सर फ्रेश पोजीशन बनती है, either in Nifty or in stock. So avoid this and then consider the time. You should note down one thing. Hello. यस सर। If any time comes up to 9:30, गैंजिला से हो, एक्सेल से हो, avoid the time and consider 9:35 to 9:40. It is your time. Why? Because first 5 minutes candle is the candle where BTST, all this position will be squared off होती है, and then fresh buying will come after 10 minutes. So अभी बनने देते हैं कैंडल, इसके बाद जो हमारे पास में कैंडल होती है 9:35 to 9:40. Now it is my candle number 1. सो सिमिलरली उन्होंने कोई काम किया है, वो मतलब 9:35 to 9:40. ओके, नहीं किसी ने मुझको पोस्ट किया 9:20, 9:25, 9:30, 9:45. यू विल एनालाइज दैट कि मार्केट का कुछ नया डायरेक्शन या नथिंग हैपेंस, ये समथिंग हैपेंस अराउंड 9:35 to 9:40. कुछ एक समय में ऐसा कुछ है जो मार्केट में, अभी जैसे ये तो मैंने देख लिया, अभी जैसे देखें अर्ली मॉर्निंग अगेन 9:35 to 9:40 is the time that something new direction starts from there. Here 9:30 and again it is down, okay, press, and now again another direction started. So have you noted, sir? 9:35 to 9:40. यस सर। 9:35 to 9:40. New direction of the market, our market, Indian market starts. Maximum time there.
not every time, but maximum time. So you just note down up to 9:30, any time comes either from Excel or from Ganjila. Best to take 9:35 to 9:30. It is the most reactive time of our market. Clear? Now, हेलो से ना यस और नो खाली बोले ना कि Yes, sir. समझ में आई कि नहीं। हाँ, बस खाली Clear, इतनी sir. बोलिए, बस बात नहीं करना, That's अपनी clear, माइक sir. ऑफ कर बस, ताकि मुझको लगे कि एक सेकंड में और थोड़ा पानी पीजिए। Now, there are in every market there are certain specific time. It is also called mother time. It is also called where actually market reacts. Not every time, but maximum time. Suppose I have told price time synchronization. When it happens, market reacts from 9:25 to 9:40. One-sided direction market decides. So, for Indian market indices, there are certain time when market reacts, and this is the time when maximum time market reacts. What is the meaning of this? First 9:25 to 9:30 comes, then you have to consider 9:35 to 9:40. And then the next reaction time is the ninth bar from the beginning. Ninth bar from the beginning, then 12 bar. What is the meaning of that? 12 बार तो वो बार है जहां पर मैक्सिमम टाइम अपना मार्केट एक मतलब कि नहीं डायरेक्शन देता है 10-15 से 10-20-25 के अराउंड comes here today. First, from this opening bar to ninth bar, and the time will come 10 to 10:05. मतलब अपना मार्केट का एक जो डायरेक्शन होता है 9:40 से 9:45, एंड एज पर टेस्ला नंबर और योर WD गैन थ्योरी 9th और 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. सो 9th बार टाइम इज द टाइम वेयर मैक्सिमम टाइम मार्केट्स इसका हाई लो ब्रेक करता है तो एक साइडेड डायरेक्शन देता है. नंबर 1. नंबर 2, 9:55, ये सॉरी 10 बजे, but its accuracy is less. Its accuracy is less. So best 5-star time is the 12 bar. Now, how to use 10-10 मतलब 12 bar from the beginning. It is your mother time. अगर कोई न्यूज बेस्ड नहीं हो तो मार्केट का मैक्सिमम रिएक्शन वहां से होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फ्रॉम दिस ओपनिंग टू दिस 12 bar means 10:15 to 10:20. It is the bar where maximum time our market reacts. So best 5-star time is this. And also you can choose 3-star time is this. And then superb time, it will come after 1:25 12:40 के बाद में and after 1:55. Now, अभी कोई एक डेट बोले सर, कोई भी एक डेट बोले, कोई भी मंथ का 3 डेट बोले आप. 20 जनवरी. 20 जनवरी, चलिए जनवरी 20 मंडे. ना 10:15 से 10:20 का कैंडल. सिंपली कम एंड mark the high and mark them. Okay. Whichever side candle breaks with a superb body, again market will take that direction. So it is 5-star and it is the mother time.
अनदर सुपर टाइम इज 1:55 से लेकर के 2:05 तक। 1:55 से लेकर के 2:05 तक ये अपने मार्केट की अपने लिए सुपर समय होता है वो मार्केट में नेक्स्ट ट्रेंड का। और कोई डेट सर पहले बोले फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाना। 3 डेट बोले, 3 डेट बोले, कोई भी 3 डेट। 21 जन 21 21 simply what you have to do from the 9:15 to mark the 12 bar, and you will get the timing candle this and this, and it is the timing candle maximum time it will give one-sided direction. And another हेलो 7 जन ले लीजिए। 7 जन 7 जन 14 जन किसी ने बोला, चलिए 7th जन, हाँ यस 10 10 10 15 3 ट्रेड बने सर, मोटा मोटा पैसे बने कि नहीं, कुछ ना कुछ तो बने। हेलो हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर। मतलब आई मीन टू से कि जब इसका हाई या लो टूटता है तो मतलब मार्केट का एक मतलब इन डायरेक्शन होता है और वो डायरेक्शन बहुत देर तक कंटिन्यू। तो यू हैव एनालाइज्ड लास्ट किसी ने समवन हैज टोल्ड 14th जन, किसी मैम ने बोला वो 14 दिन अगेन 10:15 अगेन 10:15 मार्क सिंपली हाई एंड सिंपली लो। स्टॉप लॉस छोटा का मेथड मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में, पहले आप मतलब इसको देख ले, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम। अगेन वेट when it has given closing with a super body on the price retest one-sided direction you have got. So can I say it is the mother time whose high and low is very important for our market? Yes or no? 12 bar. यस सर। यस सर। It is सर also अभी तो adapt सिर्फ to एक ही एग्जांपल में एक वैलिड ट्रेड दिखा, लेकिन बाकी के एग्जांपल में से वैलिड ट्रेड नहीं मिले कि रिटेस्ट भी हो रहा है या फिर एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल रहा है। नहीं 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 प्रॉपर। अभी देखिए 7th को जो आपको यहाँ पर ट्रेड बने, आपने पूरी कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर प्राइस ने डाउनफॉल किया, यहाँ पर प्राइस ने रिटेस्ट किया, आपने यहाँ पर 26152 के अराउंड आपने सर यहाँ पर पीई बाई किया, शॉर्ट ओके, किया, राइट। ठीक है, आपने यहाँ पर पीई बाई किया, कॉल को सेल किया। स्टॉप लॉस कहाँ पर है, ये कैंडल का हाई पर है। तो यहाँ पर आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, निफ्टी में 25-30 पॉइंट स्टॉप लॉस परफेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रीमियम में आपका 20 पॉइंट। नाउ आफ्टर इट हैज गिवन कम अप एंड आफ्टर इट हैज गिवन ब्रेक डाउन तो वन से, तो हाउ विल यू एग्जीक्यूट द ट्रेड? जब तक स्टॉप लॉस नहीं हो कीप योर ट्रेड कंटिन्यू ना, यू कैन अप्लाई ऑल्सो बोलिंगर बैंड। यहाँ पे तो बॉलिंजर बैंड में बाइंग साइड आपके हिसाब से वो बाइंग साइड बोलिंगर बैंड बायस नहीं, बता रहा इसने है। जब वो डाउन साइड ब्रेक किया विच इज द कैंडल, दिस इज द कैंडल, तो जब बाइंग साइड ये इसने ब्रेक किया, ठीक है, तो ये वाला मिडिल बैंड के नीचे था, इट इज मार्केट तो सीधा नीचे नहीं आएगा ना, आप ऐसा कुछ सोच रहे कि सीधा आएगा, नहीं, और नीचे आएगा, जिग जैग अप जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर अप जाएगा, फिर नीचे आएगा, वो आपको डराते धमकाते हुए मार्केट मूव करता हो। आपका सेटअप पूरा क्लियर है कि आई हैव टू सेल बिलो दिस व्हेन प्राइस विल डू द रीटेस्ट, मैं यहाँ पर पुट बाई कर लूंगा, या मैं और थोड़ी ऊपर ही बाई करूंगा 5 पॉइंट का बफर लगा करके, चलो मैं यहाँ ना, इफ माई स्टॉप लॉस विल नॉट ट्रिगर आई विल कंटिन्यू द ट्रेड। मार्केट सीधा नीचे कभी नहीं आता है ना, आएगा सर पुल बैक लेगा, फिर कहीं सपोर्ट लेगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर बट वेन आफ्टर दैट इट हैज गिवन ब्रेक डाउन तो सीधा ही नीचे आइए, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ ना, आई मीन टू से दैट। ये तो मिलने चाहिए ना, प्रीमियम में तो ऐसे चार्ट नहीं चलता। तो आप एक काम, प्रीमियम तो मैनिपुलेटेड है, आप प्रीमियम मार्क करेंगे तो लाइफ में पैसे, वो मैं आपको ऑप्शन नंबर के साथ सिखाऊंगा, लेकिन प्रीमियम में आप कुछ भी मार्क करेंगे आपको लाइफ में नहीं बनेंगे। सपोज यू हैव टेकन
आईटीसी शेयर प्रीमियम, वो प्रीमियम 1 घंटे से एक जगह पर खड़ा है, प्राइस मूव कर रहा है, आप क्या करेंगे? सर स्प्रेड्स बना सकते हैं शायद उसमें। नहीं नहीं, ऐसा बहुत स्टॉक है जिसमें 1 घंटे से लिक्विडिटी ही नहीं है, वो प्राइस एक जगह पर ही स्टैंड है, तो क्या कोई ट्रेड हाँ, नहीं प्राइस करते? अटका रहता है, बराबर, अटका हम रहता। फिर लिक्विड में तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं कर निकल पाएंगे। जाते हैं। तो बात यह है कि मैंने स्पॉट पर अपना पूरा, अब आप बोलेंगे सर इतना देर में तो थीटा टी पे होगा, तो होगा, ये तो एनएससी की सेटिंग है, इट इज नॉट माय पार्ट, इट इज एनएससी पार्ट। आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो यू कैन सेल फ्यूचर, फ्यूचर सेल करें निफ्टी का, या आप मतलब कि ना कॉल को सेल करें, कैपिटल ज्यादा लगेगा, थीटा डीके की भी बेनिफिट होगी। अब वो सर बाइंग में थीटा डीके होता है तो सबका होता है, आपका भी होता है तो मेरा भी होता है, वो तो एनएससी का ऐसा बना हुआ है ना कि आपको पैसे नहीं बनाने दे, वो फिर अलग बात है। तो ऑलवेज ऑप्शन डेटा इज नॉट द रॉ चार्ट, वो तो आपका मतलब रॉ, दिस चार्ट बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइस, implied volatility plus Greeks, and all this data creates an option premium. So if any Greeks implied volatility may rise or all these things option price, तो it is manipulated ना, we cannot believe on this, उस पर हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। सर इस केस में भी ब्रेकआउट के सारे रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे ना? जब तक फॉलो करे तो सबसे बेस्ट है, मैं ये बोलूंगा वो, क्योंकि पैसा मेरा है। यू डोंट नीड की टू ट्रेड एवरी डे, मैंने बोला ना जैसे प्राइस टाइम सिंक्रोनाइजेशन में हर दिन ट्रेड करना कोई नेसेसरी नहीं है, वेदर टू डू राइट सर, राइट। 20 trades every day, it is better to take five sir quality trades where you will get 1:2 4 5 6। हर दिन ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं, वो तो पैसा तो लूज होगा, वो मतलब पैसा बनेगा नहीं। एवरी डे राइट मैं सर। आता हूँ, ठीक है, फॉरेक्स में मैं मतलब हर सेशन में एक एक ट्रेड लेता हूँ, टोटल मैंने मंथ में 60 ट्रेड किए, आपकी अल्टीमेटली मतलब जा करके देखेंगे तो व्हाट हैज हैपेंड, थोड़ा बना या फिर मतलब की रेट में। एंड आई हैव टेकन 5 क्वालिटी ट्रेड्स, आई हैव ग्रोन माई कैपिटल फ्रॉम $1,000 to $1,100, आई एम सर मोर सक्सेस देन यू ना, आई मीन टू से दैट। करेक्ट सर। तो सर मैं इस टाइप आपसे का मतलब यहाँ पर जैसे सर देखिए, आई आई हैव मार्क द हाई एंड, इट हैज गिवन अपसाइड ब्रेकआउट, इसको इसने टच किया, अगर समझ में नहीं आता है वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू फॉर्म, अगेन वेट फॉर रिटेस्ट। तो मैंने बोला 5-7 पॉइंट का बफर भी होता है, लेकिन ये पास्ट की डेटा, अवॉइड दिस, ठीक है। इफ यू हैव नॉट गॉट ट्रेड, ओके नो प्रॉब्लम, अवॉइड दिस। आई मीन टू से कि ओनली इस टाइम पर ही नहीं करना है, बट इट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द मार्केट। सपोज यू हैव टेकन 13th Good. अच्छा, ट्रेड तो जिस दिन आपके लिए बड़ा अगर गैप्स क्रिएट होता है तो अवॉइड कर देना ज्यादा बेहतर होता है, इट इज नो ट्रेडिंग डे। हियर आई हैव टेकन 17th, ओके, नाउ सिंपली आई हैव कम हियर, ऐसा कोई मेथड नहीं है जहां पर स्टॉप लॉस नहीं होगा, वो नहीं है वो। नाउ हियर आई हैव सिंपली मार्क द हाई एंड मार्क द लो, it has given breakout, done retest, taken my stop loss, okay no problem, it will take, 5 में से एक अगर स्टॉप लॉस ले ले तो ले ले, क्या कर सकते ना। ठीक है, 10-15, what you have to do, you have to simply mark the high and mark। अभी बोलेंगे मार्केट ने ये नहीं दिया, तो एवरी टाइम आपको सर रिटेस्ट देगा, ये मार्केट का कोई रूल्स नहीं है, आपको आगे पीछे ट्रेड बढ़ करके लेने होते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ द गेम। नहीं देगा तो सर नहीं लेंगे, ये भी हो सर सकता ऐसा तो कर है ये। सकते हैं, अगर छोटा छोटा रेंज है तो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, अगर बड़ा है तो रिटेस्ट ले हाँ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है कि 21 पॉइंट्स का इट इज गिवन ब्रेकडाउन, अब यहाँ पर आपको आकर के रिटेस्ट मिला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट इज नॉट द स्मॉल टाइम, तो कुछ लोग यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हैं, ये इट विल नॉट ट्रिगर स्टॉप लॉस, यू विल गेट
टारगेट अराउंड देयर, ओके नो प्रॉब्लम। अब नहीं मूवमेंट है तो नहीं है, कोई तो मतलब कि ना बाजार में सर मूवमेंट तो ला नहीं सकता है, बट आप जब मतलब बाजार में हैं तो आपको तो ये सारी चीजें मिलेंगी। अगेन वॉच इट देयर, दिस 12 बार इज ऑल्सो एनफ टू मेक मनी rather than doing all these things. Now watch it there, it has given downside breakdown retest, wait for the any candle close above this, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि छोटा है तो हम लोग 30 पॉइंट तक हम लोग उसको ले सकते हैं, मतलब इन अ निफ्टी मैक्सिमम इट कैन बी टेकन 30 to 35 पॉइंट्स स्टॉप लॉस, क्योंकि प्रीमियम में 15 से 20 पॉइंट हो, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं होता है। It has given wait for the candle close, candle closes, okay, give the stop loss. If it has not closed and it has taken rejection, again price will come down. So every time when the new candle forms, when the new things happen, suppose it has triggered, you have to analyze here what is happening there. It is a rejection candle, okay. अपसाइड में क्या है, एक मार्केट में रेजिस्टेंस भी है। जब आप ट्रेड में आते हैं ना सौम्यदीप सर, हेलो, व्हेन यू विल कम इन ट्रेड, यस सर। ओनली आपके हाथ में क्या है, बाई और सेल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, स्टॉप लॉस टारगेट। But again, the price when it will come, it is the past data looks very beauty. But you have to analyze and wait. यहाँ पर आप बोलेंगे मैंने तो टाइमिंग कैंडल देखा, अरे भैया मैंने आपको प्राइस भी पढ़ाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर एक मार्केट में रेजिस्टेंस भी है, ठीक है ना। अगर इससे यहाँ पर रिजेक्शन लेते तो ट्रेड में बने रहेंगे, अगर इसको ये अच्छी बोल तो हम लोग निकल जाएंगे मार्केट से। तो एवरी टाइम वेन द न्यू कैंडल, बिकॉज you have executed trade here, okay, but the new candle is forming and it is a dynamic market, so you have to analyze when the price will come nearby support, nearby entry, क्या वो रिजेक्शन दे रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन एनीवन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टाइमिंग कैंडल, क्या होता है? हेलो, It's when price meets time, something like that, sir. नो नो नो, एक कोई इम्पोर्टेंट रेंज जो कैंडल का बनता है। टाइम जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करता है। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो ये पूरी बात मार्केट में झूठ है जो लोग पढ़ाते हैं टाइम साइकिल की, हम लोग टाइम ट्रेडर है। क्लियर? अब आप बोले क्यों झूठ है? हेलो, बताइए सर। क्यों सर? टाइम साइकिल पढ़ते हैं हाँ तो जी, हाँ जी, मतलब हम लोग टाइम ट्रेड करते हैं। अरे भैया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टाइमिंग कैंडल? टाइमिंग कैंडल मीनिंग इज नथिंग, ओनली यू आर मार्किंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यू आर मार्किंग नथिंग देयर। बट व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस कैंडल के ऊपर निकल जाए तो आपका स्टॉप लॉस, मतलब इट इज कॉल्ड ब्रेकआउट, मतलब ट्रेंड चेंज। इसके नीचे रहे तो इट इज कॉल्ड ट्रेंड चेंज, इसके बीच में रहे तो न्यूट्रल। बट वी आर नॉट टाइम ट्रेडर, इट इज कंप्लीटली मिथ कि हम लोग टाइम ट्रेड करते हैं। हम लोग प्राइस ट्रेड करते हैं, और जो हाई लो मार्क करते हैं इट इज द बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बेस्ड ऑन द टाइमिंग कैंडल। Am I wrong? All right. So it means, sir, we can mark any candle high and low, and based on that we No, can no, trade no, at. no, 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 no. You have to find the best. You have to find the best, not No, no. any Basically, candle. we need to analyze and think this is the end of the trend, and we mark the Yes. candle there and trade. I will teach that method in intraday BTST top and bottom capturing. Trend is Okay. end, mark the high and low, and what I have taught in EMA strategy, no one has captured. I have just applied that method there. After I'm trend using that, has sir. given, I'm using that. after that it has given breakdown, retest, breakdown. It means that trend continues, you have marked the high and low. So what you are marking there, you are not marking any time, you are marking the price level, and the price level where market reaction होने की chances बहुत अच्छी होती है, single side Basically, we are direction can be limiting, divided. we are defining our stop loss actually. You know, after marking this,
you are also, sir, deciding entry, all these things. Yes, But it is the entry and stop loss both. यस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये टोटली मीथ है। कोई बोले सर मैं मतलब कि ना गैन टाइम साइकिल करता हूँ, मैं हर टाइम साइकिल, मैं दुनिया का सब साइकिल मैं आपको प्रैक्टिकली बोलता हूँ, ये सब झूठ है। सर हम ऐसा भी समझ सकते हैं ना सर, जब अपन टाइम कैंडल को आइडेंटिफाई करें जो भी अपना एक्सेल शीट या ज्ञान से, तो हम्म। टाइम साइकिल अपना चार्ट जो है ओनली इट इज शोइंग x-axis, that is price only. So we are converting the time cycle into the x-axis, whereas the time cycle is in the y-axis. So जब आप यस वो आइडेंटिफाई करेंगे ऑटोमेटिकली आपको x-axis आएगा। वो जब x-axis आएगा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल हो जाएगा। और एक बात, यस 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 प्राइस एंड परफेक्ट। टाइम साइकिल बोले तो जब अपना प्राइस कैंडल कौन से भी हो, पिछले वाला अपन रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करे सो टाइम कैंडल को, तो ऑटोमेटिकली कोइंसाइड होगा, तो दैट इज द प्राइस एंड टाइम स्क्वायर हो जाएगा ना सर। यस, नो इट इज और नॉट अभी प्राइस यहाँ टाइम पर स्क्वायर, मतलब इट इज अ समथिंग मिथ की प्राइस टाइम विल बी स्क्वायर्ड, मींस सम पीपल नॉर्मली टीच दैट कि इफ द प्राइस हैज कम हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन द प्राइस विल कम आफ्टर 144 और सम साइकिल, इट इज कॉल्ड, नहीं बट नहीं नहीं इट इज नहीं नॉट सर, द क्यों मेथड, बोलते इट हो? इज नॉट द यस मेथड। दैट्स राइट, क्यों बोलते हो? अपना जो सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू और जो भी सॉफ्टवेयर हो, इट इज ओनली सपोर्टिंग द एक्स एक्सिस, दैट इज प्राइस ओनली, नॉट द टाइम। सो अपने को क्या है, वी आर कन्वर्टिंग द टाइम based on our different methodologies, and we are taking it into the horizontal lines, that is x-axis, and then we are यस converting it। मगर यहाँ पर एक दिक्कत है सर, क्या प्रॉब्लम बोले तो सर, अपन जो टाइम से ड्रॉ कर रहे हैं यू वो, कैन स्पीक इंग्लिश ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश, if we यू आर are सेइंग दिस। drawing, yeah, if we are drawing the time cycle, so it has to be continued every, so if it is not, continuation is not there, then again it is a problem for us sir। so वहां पर अपने को बहुत दिक्कत आ रहा है, वो कैसे चैलेंज कुछ सॉल्व करना समझ में नहीं आ रहा था। सिंस आई वाज वर्किंग समथिंग ऑन कंटिन्यूटी ऑफ दिस वन ओनली, आई एम फाइंडिंग इट, बट स्टिल आई एम लैगिंग समथिंग मोर इन दैट। वो आप बताए तो अच्छा रहेगा सर, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। नहीं 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 नहीं, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज आपने एक टाइम निकाला गैंजिला से, एक टाइम एक्सेल से निकाला, एक टाइम और एक मेथड से निकाला, चले कोई बात नहीं, हाँ बट जी। किसको लेना है, whom टू चूज? एक्चुअल सबको प्रॉब्लम, मतलब कि ना मुझको भी इंट्राडे मैजिकल टाइम देने में ये प्रॉब्लम आता है, बिकॉज मेरा आई नो, यस सर सर। आई नो, बिकॉज आई नो हंड्रेड्स ऑफ मेथड आपसे सर, मतलब मैंने बताया कि ज्यादा मेथड पता है मुझको, मैं राहु काल से भी समय निकालता हूँ, तो मेरे लिए कंफ्यूजन और भी ज्यादा है। ये सुनो, अब आप बोलेंगे सर आपका टाइम पर तो मार्केट रही है, वो एक अलग बात है कि आपने 145 दिया, लेकिन ये समस्याएं तो सबको आती है। तो टू सॉल्व नहीं दिस, नहीं सर, नहीं नहीं सर, जब अपन टाइम साइकिल निकालते हैं, आज का टाइम साइकिल का टाइम ही निकलना ही वेस्ट है सर, बिल्कुल वेस्ट है। क्यों बोले तो वी विल नॉट ट्रेड टुडेस टाइम साइकिल, टाइम टाइम साइकिल का जो टाइम है अपन ट्रेड ही नहीं करते। क्यों बोले तो सर, दिस अगेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू द एक्स एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइंस, सपोर्ट यस एंड यस यस रेजिस्टेंस, दैट गोज टू द नेक्स्ट डे। तो आज का जो यस टाइम साइकिल है वो नेक्स्ट डे के लिए वैलिड रहेगा, आज का नहीं। तो यस आज यस के लिए यस अपन ट्रेड करना बोल तो पिछले के दिन का, या पिछले 3 डेज का, 5 डेज का, 9 डेज का, तो अपन जब ट्रेड करेंगे ये कंटिन्यूटी टाइम से क्या रहेगा, जब अपने को फायदा बहुत मिलेगा बोल के मेरे आशा है सर। यस यस यस, परफेक्ट 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 हाँ ना। सर, अभी आप उस बता टॉपिक रहे पर थे ना किस, कि उस हाँ, अभी टाइम आप पर, बता हाँ रहे थे कि 3 टाइम में से कौन सा लेना है, उसका उसके बारे में बताइए, वो बहुत हाँ परफेक्ट बता रहे थे हाँ आप, वो ना, बोलिए। हाँ सर, नहीं नहीं प्रेफरेंस मतलब, सबसे ज्यादा नहीं किसको दें? नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने उनको बताया कि कुछ लोग कोर्स इसी नाम पर बेचते हैं कि ये टाइमिंग, एक्चुअल इट इज कम्प्लीटली मिथ, कि वी आर नॉट टाइम ट्रेडर, टाइम मूव्स ऑलवेज फॉरवर्ड, प्राइस मूव्स अप्स एंड डाउन, एवरीवन राइट। ट्रेड्स प्राइस, वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द टाइम, बट this time only represents this is the best support and resistance area, nothing more। दैट्स राइट सर, दैट्स राइट एंड सर। इट अभी इज अपन एक द मिनट सर, सर। सर उस टॉपिक को एंड करते, आपका टॉपिक किसी और दिन सर मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है? अभी मैं थोड़ी सी बता दूं आज की सेशन में, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। आप सर नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिएगा, ठीक है? नाउ सपोज हियर आई हैव टू फाइंड द टाइम हियर,
First of all, you say, when any time has come between, you say, Umakant sir, suppose you have got a time from the, first avoid this time. First avoid this time. What time? 10:40 to 12:55 or 1. Avoid this time. Okay. Because Okay. market. If you will not take trade, you will not lose money. But if you will take trade, maximum time market consolidate and maximum time you will lose money. Yes, sir. मैक्सिमम। सो अवॉइड दिस। अगर ट्रेड नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं कमाए, पैसे लगाए भी नहीं, पैसे कमाए भी नहीं, ठीक okay, है। no problem. But when I have putting the money between this without knowing that market has no movement, definitely you will lose. I mean to say that यहाँ पर लूज करने का एक्यूरेसी कोई जा करके बैक टेस्ट करके बताया फ्रंट टेस्ट में 80% से ज्यादा है, वो पैसे बनेंगे नहीं, अप डाउन सर आप मेरा पूरा टायर्ड हो मेरा खुद जाएंगे, यही है सर। इमोशंस, रिस्क, रिवॉर्ड, एवरीथिंग विल बी फेलियर देयर, you will ultimately tire. So now, first of all, you say, suppose you have got a today time from the Ganjila 9:20. I have just calculated. इसके बाद में एक्सेल भी खोलता हूँ। 9:20 क्लियर? हेलो? हाँ जी, सर हाँ जी। ठीक है सर। यस। यस तो सर। आपको जब 9:20 मिला तो आप कौन सा मतलब समय लेंगे, आप मुझको बताएं। 9:35 9:35 to 9:35 9:40. 9:35 to 9:30 मतलब 9:40। 9:20, यस। यहाँ पर सॉरी, ये मतलब 9:35 to 9:40, दिस इज द टाइम वेयर मार्केट नॉर्मली रिएक्ट, सो अवॉइड दिस वन, एनालाइज दिस टाइम। नो, अगेन सपोज यू हैव गॉट द टाइम देयर, what time? 11:20, avoid this. Again you have got the time 14 p.m. Now you say, Umakant sir, what time you will take? What is the chances to make money जब आपका 2 बजे का समय आ रहा है? Is that time mentioned to any sir mother or market reversal time there? नो सर। High chances. हाई यस चांसेस की ये समय मार्केट का रिवर्सल 155 से 25 155 का to बीच 2 में है अपने का चांस रहेगा। हाँ जी। कि मार्केट में एक वहां से रिवर्सल। नाउ यूजर कंसीडर दैट टाइम 155 to 25, 155 to 25, 155 to 25, take this rather than taking this single candle, combine this candle static time। नहीं सर, अपन ऐसे भी कर सकते हैं जो, तो मैं तो गैंजिला यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मेरा ओन मेथड एक टेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी नहीं कोई नहीं, वो टाइमिंग सर आए। आपका मेथड का बात नहीं कर रहे, जो लोग सर इस क्लास में मतलब नहीं, पूछते गैंजिला सर का हैं। भी है आप सर। सर गैंजिला आप का जब भी करते हैं वो अपन मेथड बताइए। फॉलो कर रहे तो अपन आज के दिन पे चार टाइमिंग आया ना सर, पिछले वाला भी हम्म चार टाइमिंग आएगा। तो पिछले वाले चार टाइमिंग से अपने को ये चार टाइमिंग, आज के दिन पे जो चार टाइमिंग आए, अपन क्या करेंगे उसको कोइंसिड करेंगे। फर्स्ट का जो है हाई एंड लो ड्रॉ करेंगे, चेक करेंगे सेकंड वाले से मिल रहा है या नहीं, या सेकंड से तीसरे वाले को कोइंसाइड हो रहा है या नहीं, एक हम्म इनसाइड कैंसिल कैंडल कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करके उसका हाई लो मार करके देन वी कैन टेक बोल के, मेरा आइडिया ओपिनियन है सर। मैं भी गलत हो सकता अच्छा है ठीक, मगर नहीं 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 करना नहीं पड़ेगा। नहीं, आपका मेथड परफेक्ट है, लेकिन आज मैं बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट डे मैं बात करूंगा आपका मेथड पे, ठीक हाँ है? बिल्कुल सर सर। आप अपना आज, बताइए। हाँ। तो नाउ इट इज क्लियर कि अगर हमें आज के लिए गैंजिला पर समय मिला तो हम लोगों को कौन कौन सा समय लेना है? 9:20 मीन्स 9:30 to 9:45, एंड देन 2 o'clock। 14 means it टू is ओ the क्लॉक best to take 1:45 to Yes. 25. That's दैट्स मदर method. मदर कैंडल। हाँ जी। Now, that's now. Suppose here you have got another. I have I have taken this. Okay. Now, when it has made the low, आपका मेथड मैं सर समझ गया हूँ उमाकांत सर, ठीक है? वो अच्छा है, लेकिन मैं आज नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके। बिल्कुल सर, Now, बिल्कुल। it has made the low 23556 and 23. Now, it is the low 915, 915। अभी आप लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आज क्या ना। Next day, 9th means 10th. Okay. Now, first 9:20, then sir 12:40, and the time is over. Okay. Now,
First, you have got Noted. the 920 means you say 935 935 to to 940. 935 to 940. Clear? Mark the high end and then take trade. Then another time I have got 1240, but I have told that Noted. market normally consolidates between this time. So नेक्स्ट 1240 के बाद में कौन सी टाइम मेरे लिए बेस्ट है? अच्छा, यहाँ पर नहीं है। यू जस्ट नोट डाउन कि अगर 1240 आता है तो देन नोट डाउन 1255 टू 105 PM. 12 now how to do all these things because our market is 6 hour. ये आपको सर फॉरेक्स गोल्ड में समस्याएं नहीं होगी, बट यहाँ पे समस्या होगी। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आवर मार्केट इज 6 आवर्स मार्केट एंड 6 आवर्स मार्केट में ओनली मार्केट मूव्स 3 आवर्स 9:15 टू 10:30 और सर 10:40 एंड देन 12:40 टू 2 बजे 2:30 बजे तक। इसके बाद तुम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं ना इंट्राडे। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। अपने लोग तो 2:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेंगे ना, 2:30-3 बजे के बाद नाउ, क्योंकि आज का ट्रेड अगर क्लोज नहीं हो जाए तो नाउ आई हैव गॉट अ लिमिटेड टाइम, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस। बट इन द फॉरेक्स मार्केट यू सर डोंट नीड टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, कॉम्बो टाइम enough now. So if you have got the 1240, you have to take the time 12:55 to 1:05. इसका 12:45 to 1. Got it, sir. Got it, sir. 12:55 to this 105, and then marks are all this candle high end. Okay, take that. सर वो नो ट्रेडिंग जोन में कोई Yes, भी sir. टाइम आएगा तो हम यही लेंगे टाइम। उसके नियर बाई वाला देंगे, नियर बाई वाला। ओके 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 सर। बट अगर ऐसा कोई टाइम निकलता है सपोज 9:40 या तो इट इज बेटर, बट अगेन आई एम सेइंग कि ये टाइम खुद में अपने आप में बेस्ट है। अगर आपको सपोज 10:05 आया या 10:30 आया, टेक द टाइम 10:15 to 10:20 नियर बाय, because you have analyzed maximum time market reacts on that time. Suppose you have got 10:05, avoid this, no problem, take this time, or sir take this time 10 minutes. You have got 10:30, no problem, avoid it. आप मतलब मेरा जाकर के देखेंगे तो मैं मैक्सिमम एक टाइम मैंने आज भी दिया हो, आज भी मैंने वही वाली स्टैटिक टाइम दिया। अगेन 10:30, अवॉइड दिस, डोंट नीड, मुझको पता है कि नहीं रिएक्ट करेगा अपना मार्केट। अगेन टेक दिस टाइम, वर्क डन। सर ये ये स्टॉक्स मेरा में भी टाइम। Yes, अप्लाई sir. होता है? हाँ हाँ हाँ, हर जगह। सर एक आप बार करके स्टॉक्स देखें में ना। भी दिखाएंगे सर थोड़ा सा? रुकिए एक ना, स्टॉक पहले सर। कुछ निफ्टी, पहले आपको सर 10 जगह दिखाऊं ताकि आज के बाद ओके कंफ्यूजन नहीं हो। आप कोई डेट बोले मुझको, कोई एक डेट बोले सर। 11th फेब्रवरी की 11th बोले, 11 फेब, चलिए 11th जनवरी। फरवरी। 11, नहीं ठीक है ना, कोई एक डेट ना। तो यू हैव टू पुट द प्रीवियस डे लो, इट हैज मेड 9:15, ओके, तो सेम आएगा 9:20, तो 9:20 मीन्स 9:35 to व्हाट? 9:35 to 9:40. 9:40. First time I have got 9:35 to 9:40. I will mark the high end. Okay. It has triggered a stop loss, so okay, no problem. Now, next time I have got 12:40. 12:40 means 12:55 to 105. 12:55 to 1:05. 12:55 to 1:05. This is the time. Again, mark the high. Sorry, mark the high and look 1:05. And again, do क्या हो? No. Whichever side breaks, you can take that trade. No. Again say any date. मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग मेथड में आपको फिर से बता दूंगा। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हाउ टू चूज विच टाइम। 16th 20 फरवरी तक। 20 फरवरी, चलो मैं समय को चूज करना बता रहा हूँ। यू हैव गॉट व्हेन इट हैज मेड द लो, I think this is the low or this is the low. This is the lowest point 2538825. This 1525.
9th 15 20। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं हो कि क्या हो रहा है। 10th मार्च, 9th मार्च, 10th मार्च, what is the time? 9:30। 9:30 means you say 9:35 to 9:40. 9:35 to 9:35 to 9, 9:40. this is the time। okay, now next time 10:50। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ चूज करने के लिए, बट आई विल नॉट टेक ट्रेड। 10:50 इज नॉट द टाइम, अवॉइड दिस, इससे काफी दूर है। 10:30 होगा तो लेंगे। ना, हियर आई हैव गॉट 12:50। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12:50? यू से Yes, Our 12:55. timing is 12:55 to 1:05. 12:55 to 1। 12:55, this to 1, this one, this is my, I will choose that time। And also, if you have made money on the first time, avoid the second time, close the system and go, enjoy करें। हर ट्रेड नहीं करना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि हर ट्रेड कोई नहीं करता हो। ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा पैसे लूज होगी, और ऑल्सो इन आवर इंडियन मार्केट। 25379.75, ये सॉरी, it is the low or it is the low, this is the low, 925। now put the time there, 925, क्या हो गया? 09 देना। Pass। now here I have got the time there, 10th, 9:30, 12:50। 9:30 means 9:35 to 9:40, topmost candle you have captured। okay, नेक्स्ट टाइम 12:55. अपनी मार्केट की जो समस्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैनिपुलेटेड है, इस फेज में ना कोई प्राइस लेवल मार्क करेंगे, ना कुछ कुछ भी काम नहीं करता हो, सब सिस्टम फेल हो जाता है। दैट्स व्हाई वी नीड दैट वन, अदरवाइज नॉट। 12:50 मीन्स 12:55 to 1:15, दैट कैंडल, मार्क द हाई एंड मार्क द लो। जब तक इसके नीचे कैंडल नहीं क्लोज हो तब तक आप उसको ट्रेड करें। हियर इट हैज गिवन क्लोजिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। अगेन इफ इट विल गिव अपसाइड, यू कैन टेक अगेन। तो सर आपको मोटा मोटा समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एनी 2025 Sir, 18 date। हाँ, 18 February। 18th February, ओके। सर वॉर वाले टाइम को छोड़कर कोई और टाइम लीजिए ना सर, बार बार कौन वाला गैप टाइम? डाउन हो रहा है। तो जो आएगा उसको लेंगे ना। अब मैं एक्सेल में मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा वो, जब आएगा तो। ठीक है सर। एक एक तो क्लियर हो ना। अभी एक मतलब कि ना क्लियर हुआ तो अब आप बोल रहे कुछ और ले, तो कुछ और आएगा तब ना लेंगे भैया। और और अगर कुछ नहीं आता है तो आप ये वाली टाइम पर मतलब कि ना आकर के ट्रेड करें ना, आराम से पैसे बनेंगे। ओनली फॉलो दिस टाइम, ओके सर। बस ओके। बात खत्म। आई विल फॉलो ओनली वन, वन टाइम, वन स्टॉप, वन वाइफ लाइक दिस। तो आई विल फॉलो ओनली दिस। वो तो काम मतलब करेगा ही, मैक्सिमम टाइम वो तो करता ही है, वहीं से मार्केट में 10-15 से 10-20 का कैंडल करे ना, क्या दिक्कत है? जब नहीं करता है तो छोटा मार्केट स्टॉप लॉस मतलब कि ना दे देता है, तो दे देंगे, हो गई ना। सपोज यू हैव टू फाइंड 18th Feb time when it has made the low 925, come here 925। तो अभी आ रहा है 925, तो मैं अलग कहाँ से लूँ? 9:30 मीन्स 9:30 to 9:45, 9:30 to 9, ये 9:35 to 9:40, this is the candle। and then what was the time? 12:50। 12:55 to 1:05, this is candle, mark the high and मतलब it is also the time when market changes its direction there। again you have to find the next time,
this is the bottommost Lowest. और this is the lowest 10-15। अभी जैसे 10-15 है तो आएगा तब ना लेंगे, नहीं आएगा तो क्यों लेंगे जबरदस्ती। 10 ना, आई हैव गॉट 10th March 10-20। 10-20 मीन्स 10-15 से 10-20 वही लेंगे हम लोग। 10-20 means you can take also sir 10 minutes candle or you can take better 5 minutes 10-20 10-15 to 10-20 10-15 से 10-20 mark the high and low and then the next time what you have got 13-40 13-40 means if it has come nearby static time is what 155 to 205 बस 155 to 205 205 and what you have to do मार्क द हाई। अर्ली मॉर्निंग में पैसे बन जाए तो ये बाद की ट्रेड नहीं करे क्योंकि बाद की ट्रेड में वो मतलब अलग हो। उल्टा इट हैज पुल्टा हो ट्रिगर जाएगा। स्टॉप लॉस, हाँ मतलब यहाँ पर आपका माइंडसेट बिगड़ जाएगा। अर्ली मॉर्निंग में आपके अगर पैसे अच्छे बन गए क्लोज द ट्रेड। नाउ इफ यू हैव गॉट देयर इट हैज ट्रिगर स्टॉप लॉस देयर ओके अगेन it has closed below again it has given downside breakdown not retest not take but वो फिर से अगर डाउनसाइड देता है तो फिर से आप उसको रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर हाउ टू टेक द टाइम। Yes, sir. यस सर। तो एक्सेल वाली मैं और उमाकांत का मेथड मैं आपको नेक्स्ट सेशन में थोड़ी समझा दूंगा क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होता है। सपोज आई हैव टेकन SolarEdge today TCT combo stocks. Now when it has made the low here and 1505 and 10th March 910 910 means what 935 to 940. 935 to 930 बस अपने को ज्यादा करना ही नहीं है ना। 1030 मतलब 10-15 से 10-20. 10-15 to 10-20 अपने को ज्यादा वो कुछ करना ही नहीं है। 12-30 मतलब अवॉइड करते काफी वो दूर हो गया, नहीं काफी मतलब कि ना ज्यादा वो दूर हो गया। 10 मिनट रहता है तो बहुत अच्छा होता है। जैसे सपोज कि यहाँ पर क्या था कि 10 लेकिन फिर भी अगर 12-30 है तो यू कैन इफ यू हैव टू कंसीडर 12-55 से एक 12-55 से 12-55 एक 1-5 मतलब ये 3 कैंडल 15 मिनट को एंड मार्क द हाई एंड whichever side it breaks take that trade. No. Okay, Umakant sir? हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। No. So again I am asking one question. Just I am बहुत लोगों को बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं